Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I am Jay Arora and I am recently pursuing my masters at IIT Delhi. So in 2020, I also went through the complete process of CCMT even up to the spot rounds. So I will be in a position to explain you the complete details regarding the registration process as well as the choice filling and choice locking process. So in this video, what we'll be discussing about, we will be discussing about the very important points that should be kept in mind before starting your registration at CCMT portal, also before your choice locking and choice filling. We will be discussing the process of registration, how to register. Also, we will be discussing that what all information you should already keep in advance with you before you start your registration process of CCMT. So you all very well know that CCMT has released its notification and the starting date of registration as well as for the fee payment is 7th of June 2021, and the last date for online registration as well as for the fees payment will be 28 June 2021 up to 5 p.m. After 5 p.m. on 28th June 2021, you will not be able to register anymore for the regular or the main rounds of CCMT 2021. Also, you will not be able to pay any fees, registration fees after this deadline. But the last date for choice filling is on 29th June. And the last date for locking of the choices, that is automatic locking of the choices, is also on 29th June, that is 11:59 p.m. on 29th June. If you do not lock your choices up to this particular time and deadline, then they will automatically get locked. You can start your choice filling, registration, everything from 7th of June. So you have to be already prepared for the main rounds. Now, what are some very important points that should be kept in mind before starting your registration are, to participate in the CCMT 2021 counseling process, all eligible candidates must first register themselves through an online registration process during the specified period. ठीक है, 7th जून से 28th जून तक आप रजिस्टर कर पाएंगे. इसके बियॉन्ड आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे मेन राउंड्स के लिए. स्पॉट राउंड्स का प्रोसेस बाद का है, अगस्त सितंबर का है, तो अभी आपको उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप मेन राउंड्स के लिए आप इसी टाइम में अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं. ठीक है, अब आपको क्या क्या डिटेल्स देनी होंगी. इसमें आपको देनी होंगी डिटेल्स, एक तो अपने गेट क्रेडेंशियल्स की, आपने जो भी गेट में अपीयर किया है जिस भी ईयर में, उसकी आपको गेट की सारी डिटेल्स देनी होंगी, गेट स्कोर वगैरह देना होगा. उसके अलावा आपको क्वालिफाइंग डिग्री की डिटेल्स देनी होंगी और पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी. सो लेट मी टेल यू एग्जैक्टली आपको क्या डिटेल्स देनी है, वो मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं. सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अभी रजिस्ट्रेशन लिंक 7th जून को एक्टिवेट होने वाला है. अभी सिर्फ ऑनलाइन लिंक एक्टिवेट हुआ है, बट रजिस्ट्रेशन लिंक अभी एक्टिवेट नहीं हुआ. जब आप सीसीएमटी की वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो वहां पे आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा, 7th जून से मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा. तो उसमें आपको क्या करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है. जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक टैब खुल के आएगा जिसमें लिखा होगा प्लीज एंटर द फॉलोइंग डिटेल्स. उसमें आपको अपनी गेट रजिस्ट्रेशन आईडी देनी है जो आपके गेट स्कोर कार्ड पे लिखी होगी. आपको कैंडिडेट नेम, आपको अपना नाम देना है जो कि गेट स्कोर कार्ड के ऊपर लिखा होगा, एग्जैक्ट वही नेम देना है. फिर आपको गेट के एग्जाम का ईयर देना होगा, जिस भी ईयर में आपने गेट एग्जाम दिया है. फिर एग्जाम के पेपर का नाम देना होगा, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो भी आपका फील्ड है. देन आपको अपना गेट स्कोर डालना होगा उसमें, वैलिड गेट स्कोर. देन आपको गेट के मार्क्स डालने होंगे आउट ऑफ 100. स्कोर और मार्क्स लेने का यही वो है कि वो उनका एक कंडीशन होता है कि अगर गेट स्कोर सेम है तो वो मार्क्स के हिसाब से जज करते हैं सीट किसको पहले दी जाएगी. तो उनका क्राइटेरिया होता है, इसलिए वो स्कोर भी लेते हैं, मार्क्स भी लेते हैं. फिर आपको एक नीचे सिक्योरिटी पिन दिख रहा होगा, उस पिन को आपको एज इट इज कॉपी करना है जो कि केस सेंसिटिव होगा. इसके बाद आपको ये सबमिट कर देना है. ठीक है, तो आपका ये रजिस्ट्रेशन यहां पर हुआ. अब आपका क्या है, जब आप इसके आगे जाओगे आगे वाले टैब में, तो आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स और देनी होगी. इसके बाद ही आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा. कॉन्टैक्ट डिटेल्स में आपको अपना आईएसडी कोड देना होगा. ठीक है, आप इंडिया के हो तो इंडिया का +91, ऐसे ही मोबाइल नंबर देना होगा जो एक्टिवेटेड हो, जो आपका डेड ना हो. देन आपको ईमेल आईडी देनी होगी. इन सब पे आपका जो है आपका ओटीपीज वगैरह शेयर होंगे, आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स शेयर होंगे. तो आपको एक्टिव ईमेल आईडी और एक्टिव फोन नंबर देना है. देन यू हैव टू चूज योर पासवर्ड. नीचे एक ऑप्शन आएगा पासवर्ड चूज करने का. आप अपने हिसाब से कोई भी एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड चूज कर सकते हो जिसको आपको 2 बार एंटर करना होगा. देन यू हैव टू अगेन एंटर अ सिक्योरिटी पिन एंड देन यू हैव टू क्लिक ऑन सबमिट एंड नेक्स्ट.
ठीक है। जब आपने ये कर लिया तो इसके बाद आपको कुछ ओटीपीज डालने पड़ेंगे। आपके दो ओटीपीज आएंगे, एक ओटीपी आएगा आपका मोबाइल पे और एक ओटीपी आएगा आपका ईमेल पे। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता है, देयर विल बी ऑप्शन टू रीसेंड ओटीपी, आप दोबारा से ओटीपी मंगवा सकते हैं। आपको फिर से एक सिक्योरिटी पिन डालना पड़ेगा और फिर उसके बाद आपको क्लिक करना पड़ेगा वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे। जब आप ये कंप्लीट कर देंगे तब जाके आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए आपको गेट के डिटेल्स देने हैं और आपके कॉन्टैक्ट के डिटेल्स देने पड़ेंगे, यह बहुत मैंडेटरी है, ठीक है। अब आपने रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है। जब आप कंप्लीट कर लोगे, फाइनल सबमिट करोगे, तो आपको स्क्रीन पे दिखेगा आपका नाम और आपकी गेट की रजिस्ट्रेशन आईडी दिखेगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको लॉगिन करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। अभी आपने सिर्फ रजिस्टर किया है, ठीक है। तो अब एक ऑप्शन नीचे लिखा हुआ आएगा, ब्लू कलर से एक टैब बना हुआ आएगा, क्लिक टू लॉग इन एंड फिल द डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो अब आपको लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन करने के लिए आपको क्या डालना पड़ेगा, आपको अपना गेट का रजिस्ट्रेशन आईडी डालना पड़ेगा और आपको अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा जो कि आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था, और दोबारा से सिक्योरिटी पिन डालना पड़ेगा, फिर आपका साइन इन हो जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने क्या खुल जाएगा, आपका एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा। अब एप्लीकेशन फॉर्म में आपको बहुत सारी डिटेल्स देनी होंगी, जैसे कि सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी होंगी। उसमें फादर्स नेम, मदर्स नेम, देन डेट ऑफ बर्थ आएगी आपकी, देन आपका जेंडर, देन आपकी नेशनैलिटी, देन आपकी कैटेगरी, एंड देन वो पूछेगा कि आप कहीं पर्सन विद डिसेबिलिटी तो नहीं है। देन आपको अपनी बैंक डिटेल्स देनी होंगी। तो आप बैंक डिटेल्स बहुत ही ध्यान से भरना, ये सारी डिटेल्स बहुत ध्यान से भरी जाएंगी। अगर आपने इसमें कोई भी एरर किया तो आपको बहुत बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, मेल करना पड़ेगा, कॉल करने पड़ेंगे, तब जाके कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। तो इसलिए आप डिटेल्स सबमिट करने से पहले 2 से 3 बार चेक जरूर कर लेना, ठीक है। ये एप्लीकेशन फॉर्म का फर्स्ट पार्ट होगा जिसमें आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स दे दी। इसको भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। आप इसको सेव कर सकते हो, आप दोबारा खोलोगे तो आपको ये सेव मिलेगा डेटा, ठीक है। इसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स देनी होंगी, जिसमें आपको अपनी क्वालिफाइंग डिग्री के मार्क्स वगैरह की डिटेल्स देनी होंगी। जैसे कि आपको अपना पासिंग स्टेटस बताना होगा कि आप अभी फाइनल ईयर में हैं या अपीयरिंग हैं या फिर पास आउट हैं, क्या है, ठीक है। देन आपको अपनी क्वालिफाइंग डिग्री बतानी होगी कि आपने बीटेक करी है, आपने बीई करी है, आपने क्या किया है, ठीक है। देन आपको रिजल्ट का मोड देना होगा। देन आपको अपने मैक्सिमम मार्क्स और आपके जितने मार्क्स भी आए हैं उसमें वो देने पड़ेंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स देने पड़ेंगे अपने जो भी डिग्री है उसमें। देन आपको अपनी डिवीजन बतानी पड़ेगी, आप कौन सी डिवीजन से पास हुए हैं। देन आपको अपना क्वालिफाइंग डिसिप्लिन बताना पड़ेगा कि आप कौन से ब्रांच से पास आउट हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। फिर आपको अपना पासिंग ईयर बताना होगा कि आप कौन से ईयर में पास आउट होंगे, 2021, 2022, व्हाटएवर, ठीक है। इसके बाद इसको भी आप सेव कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म का आपका सेकंड पार्ट होगा, ठीक है। तो ये आपका सेव करने के बाद आपको अपनी सारी डिटेल्स सबमिट कर देनी है। इससे आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट भर जाएगा, ठीक है। जब आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया तो उसके बाद इस समय आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे और एप्लीकेशन फॉर्म भरने के टाइम पे आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने हैं। आपको अभी इस समय कोई भी अपने सर्टिफिकेट्स नहीं लगाने हैं, ओबीसी सर्टिफिकेट, एससी सर्टिफिकेट, या आपको अपनी मार्कशीट्स या आपको अपनी डिग्री, ये सारी चीजें आपको इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं लगानी है। ये सब आपको बाद में करनी है, जब आपको सीट मिल जाएगी उसके बाद आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। ये सारा उस पॉइंट का टाइम है, ठीक है। अभी आपको ये सारी चीजों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आपको सिर्फ बेसिक डिटेल्स देनी है। अब आपको डिटेल्स देते समय और क्या चीजें ध्यान रखनी है वो मैं आपको बता देता हूं। ये सारी चीजें आपको दिमाग में जरूर रखनी है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है। रजिस्ट्रेशन फी जो है वो नॉन रिफंडेबल है और ये आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वापस नहीं करी जाएगी। रजिस्ट्रेशन फीस कितनी है ये आपको पता होगा, 3000 रुपीज है, पहले से बढ़ गई है 500 रुपए, पहले 2500 थी, अब 3000 रुपीज है फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट्स, और 2500 है एससी, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। ये स्पॉट राउंड के लिए भी इतनी है, मेन राउंड के लिए भी इतनी है। ये कभी भी रिफंड नहीं होगी, चाहे आप विड्रॉ करें सीट से अपने, चाहे आपको कोई भी कॉलेज अलॉट ना हो, कुछ भी हो, ये आपको नहीं मिलेगी वापस। सेकेंड पॉइंट इज ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट केयरफुली एंटर देयर पर्सनल डिटेल्स, एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, बैंक डिटेल्स एंड अदर इन्फॉर्मेशन। आप बहुत ध्यान से डालना, गलत इन्फॉर्मेशन डाली तो बहुत परेशानी होने वाली है। देन कैंडिडेट्स मस्ट रीड ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस बिफोर क्लिकिंग ऑन द आई एग्री चेकबॉक्स। तो ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। इफ द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय द कैंडिडेट इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट, अगर आपकी इन्फॉर्मेशन बाद में इनकरेक्ट मानी जाती है या नहीं सही मानी जाती तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आप पे लीगल एक्शन भी हो सकता है और इसके अलावा आपकी सीट तो विड्रॉ कर ही जाएगी। दूसरी बात ये कि आपने जितना भी फीस पे किया है वो सारी की सारी फोरफीट कर ली जाएगी और आपको वापस नहीं करी जाएगी अगर आपको सीट मिलती है और आपका डेटा सारा इनकरेक्ट पाया जाता है तब,
ठीक है, तो ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज, आप फीस जो पे करेंगे तो रजिस्ट्रेशन फीस जो पे करी जाएगी वो आईसीआईसीआई बैंक के ऑनलाइन मोड से पे करी जा सकती है बस, जैसे कि नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड या आई श्योर पे से, ठीक है, या फिर किसी भी आईसीआईसीआई की और कोई ब्रांच से पे करी जा सकती है थ्रू ई चालान। तो ये चीज आप ध्यान रखना पेमेंट करते समय, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। पेमेंट कब होता है तो आपको बता दूं, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपका पेमेंट होता है रजिस्ट्रेशन वाली फीस का, और उसके बाद ही आप चॉइस फिल कर सकते हैं, उससे पहले आप चॉइस फिल नहीं कर सकते हैं। अब चॉइस फिल करने के भी एक कुछ रूल्स हैं, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि ड्यूरिंग चॉइस फिलिंग द कैंडिडेट्स आर फ्री टू चेंज, रीऑर्डर, डिलीट एंड ऐड देयर चॉइसेस ऑफ प्रोग्राम्स और इंस्टीट्यूट एज पर देयर प्रेफरेंस। आपने एक बार चॉइस डाल दी तो ये नहीं है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लॉक करने से पहले आप अपनी चॉइसेस को कितनी बार भी चेंज और रीऑर्डर कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। बट अगर आपने एक बार अपनी चॉइसेस लॉक कर दी, उसके बाद आप कोई चेंज नहीं कर पाओगे, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। और एक बार आपकी ऑटोमेटिक चॉइस फिलिंग लॉक हो गई, उसके बाद भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। दैट मींस 29 जून 2021 के 11:59 PM के बाद आप कोई चेंजेस उसमें नहीं कर सकते हो। आपने अगर सारी चॉइसेस अपनी पहले से फिल कर ली हैं तो आप 29 जून से पहले भी उसको लॉक कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। अगर आप उसको लॉक करना भूल जाते हो तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा, लेकिन सेव करना मत भूलना। अगर सेव नहीं किया तो सारी चॉइसेस जो आपने भरी हैं वो सारी आपको दोबारा से भरनी पड़ेंगी, ठीक है। दूसरी चीज, कैंडिडेट्स मस्ट इंश्योर देमसेल्व्स दैट दे फुली सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये तो सीधी सी बात है, आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करने चाहिए हो कि आपके पास प्रॉपर गेट स्कोर्स होने चाहिए एंड सो ऑन, ठीक है। दूसरी चीज, ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट लॉक देयर फाइनल चॉइसेस बाय 11:59 PM ऑन 29 जून, ठीक है, ये आपको पता है, मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। द सेव्ड चॉइस लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 प्रोग्राम। अगर आपने अपनी चॉइसेस में एटलीस्ट एक प्रोग्राम नहीं रखा है तो फिर आप पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाओगे। इसका मतलब है आपको कुछ चाहिए ही नहीं अगर आपने कोई फिल ही नहीं करी चॉइस। तो चॉइस फिल करने के बाद सेव करना मत भूलना, पर सेव करने के बाद लॉक तभी करना जब आपने सारी चॉइसेस अच्छे से फिल कर ली हो, ठीक है। कैंडिडेट्स विल नॉट बी एबल टू अनलॉक और चेंज देयर चॉइसेस वंस द चॉइसेस आर लॉक्ड। अगर आपकी चॉइसेस एक बार लॉक हो जाती हैं, आप उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे। अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप CCMT 2021 help@mnit.ac.in पे अपना ईमेल भेज सकते हो। आपको ईमेल्स भेजने पड़ेंगे, तब वो आपको रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग से रिलेटेड क्वेरी है तो आप इनको ईमेल कर सकते हो। बाकी आप मेरे से कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। इसके अलावा आई हैव मेड 2 more वीडियोस। एक तो मैंने अपडेट के ऊपर बनाई है, CCMT में कुछ चेंजेस आए हैं, फीस के साथ एक और चेंज आया है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स का, तो आपको वो चेंज देखना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। दूसरा, जब आपका राउंड स्टार्ट होंगे उसका जो प्रोसेस है, डिटेल्ड प्रोसेस कि कैसे आपको स्लाइड फ्लोट करना है, क्या उसका मतलब होता है, कैसे सारे राउंड्स का वर्किंग होती है, वो सब मैंने एक और वीडियो में बना रखा है। आई विल बी प्रोवाइडिंग द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। ऑल्सो CCMT 2021 वेबसाइट का भी मैं लिंक दे दूंगा। आप 7 जून को जाकर वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 7 जून से लेकर 28 जून के बीच में कभी भी कर सकते हैं, और अपने सारी डिटेल्स ऑलरेडी अपने पास एडवांस में रेडी रखना, जिससे कि आपको रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे कोई भी डिटेल के लिए आगे पीछे नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम अभी मत लेना। अगर कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास अभी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब आपको जुलाई और अगस्त में डालने पड़ेंगे, जब आपका ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, ODVC जब आपका स्टार्ट होगा तब वो आपको डालने पड़ेंगे। और जिन स्टूडेंट्स के पास अभी अपना सर्टिफिकेट्स नहीं है, वो सब अपने अंडरटेकिंग्स डाल सकते हैं, एफिडेविट्स डाल सकते हैं, उनको भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे अभी जो फाइनल ईयर्स में है, उनके पास अपना पासिंग सर्टिफिकेट नहीं होगा, जब उन्होंने अभी अपनी डिग्री कंप्लीट ही नहीं करी है तो उनके पास अभी से डिग्री नहीं होती है, सर्टिफिकेट्स नहीं होते हैं, तो उसके केस में अंडरटेकिंग भरी जाती है। वो अंडरटेकिंग कहां मिलती है आपको? अंडरटेकिंग आपको CCMT की वेबसाइट पे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में मिलती है, आपको उसको प्रिंट कराना पड़ेगा। उसके बाद आपको अपने कॉलेज से उसको साइन कराना पड़ता है। अब इस बार सिचुएशन थोड़ी पैंडेमिक की है तो पता नहीं साइन कराने का प्रोसेस कैसा रहता है, बट अभी तक यही प्रोसेस होता आ रहा था कि आपको प्रिंट कराना था और अपने कॉलेज से साइन कराना था उस अंडरटेकिंग को, और फिर उसको अपलोड करना था, और जब आपके पास डिग्रीज आ जाती थी तब आप उसको वेरीफाई करा सकते थे उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। सो यही प्रोसेस है CCMT का। आई होप यू ऑल आर वेरी क्लियर विद रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस लॉकिंग, और आगे मैं बहुत सारे अपडेट्स लाता रहूंगा, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। Thank you everyone. Stay motivated and do not take any stress. Goodbye.